Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. Crown of Life के ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। It's a privilege to present ourselves with the living word of God. और ये हमारा सौभाग्य है कि जीवित परमेश्वर के वचन को आप तक ला सके। One author named Max Lucado said, और एक जो लेखक है जिसका नाम मैक्स लुकोडो है, meet your fears with faith. और उसने इस तरह से कहा कि अपने भय को विश्वास के साथ भेंट कीजिए। This morning, if you are someone who is struggling to face your fears, और इस सवेरे के वक्त अगर आप ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं आपके डर के साथ, be encouraged that your faith in God will help you to overcome all your fears in your life in the name of और हम Jesus. आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आपका विश्वास परमेश्वर में जो है वो आपको जो है मदद करेगा आपके हर एक भय पे हावी होने के Faith लिए। in God can be shown by trusting in Him and celebrating in Him. और देखिए जब आपका विश्वास जो है आप परमेश्वर पर विश्वास जो है उन पर निर्भर होकर उन पर भरोसा रखकर दिखाते हैं। Faith in God is shown when we worship our Almighty God and declare that there is no one greater than Him. और देखिए जब हम विश्वास से उनकी आराधना उनकी स्तुति करते हैं उत्साह मनाते हैं तब हम हमारा विश्वास उन पर दिखाते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं The word of God says in 1 John chapter 4 verse 4, और वचन कहता है पहला यूहन्ना का किताब 4 अध्याय 4 वाक्य में, the one who is in you is greater than the one who is in the world. और जो आप में है वो जो संसार में है उससे बढ़कर है। This morning, be encouraged and prepare yourself to worship the Almighty One who is greater than everything. इस सवेरे के वक्त आप प्रोत्साहित हो जाइए और उस परमेश्वर की आराधना कीजिए जो इस सब कुछ से बढ़कर है। So this morning, let's come together and worship our Almighty God. आइए इस सवेरे के वक्त हम इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करें। Let's make this song as a prayer. आइए हम ये गीत को एक प्रार्थना के रूप में हम रखेंगे परमेश्वर के सामने। I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, because I never want to go back to my own life. I need you, Lord, more than yesterday. I need you, Lord, more than words could say. I need you more, oh, than ever before. I need you more. I need you more. We need you more and more. We need you more and more every single day, every single minute. हम आपके बिना कुछ है नहीं परमेश्वर। हम आपके बिना अधूरा है प्रभु।
आपसे मांगते हैं प्रभु, come fill our lives, Lord, fill our hearts, Lord. Come and have your way in our lives, Jesus. This is our prayer, Lord. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Come on, one more time. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. यीशु तू ही जरूरत मेरी, हर पहर हर घड़ी तू ही मेरी शान, मेरी चट्टान। यीशु तू जरूरी, तू ही मेरी शान, तू ही मेरी शान, मेरी
Wherever we are, let's just lift up our voices. जहाँ कहीं भी हम हैं अपने हाथों को उठाए, Let's just lift up our voices. Let's just declare His holy name. अपने आवाज को उठाते हुए हम प्रभु के पवित्र नाम को ऊंचा He is उठाए। God Almighty. और वो सर्वशक्तिमान प्रभु He is the है, Alpha and the वो Omega. अल्फा और ओमेगा है, He is the beginning and the end. और वो शुरुआत और अंत है। Can we lift up our voices? आइए अपने आवाज को उठाए। Can we lift His name? क्या हम उनके नाम को सराह Oh, सकते can we हैं? say that, Lord, you deserve all the glory, O Lord क्या हम Jesus? प्रभु से कह सकते हैं प्रभु तू इस योग्य है प्रभु? Oh, yes, God, can we remember what He has done for your life? क्या आपके जिंदगी में जो किया है उसको याद Oh, कर yes, सकते Jesus. हैं? Come on. Just lift up your voices. अपने आवाज को उठाए कलीसिया। करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठा दे तेरा नाम, यीशुआ महिमा। His presence is there in our midst. उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है, Oh, He's touching His people. और वो अपने लोगों को छू रहे He's हैं, stirring up His people. और अपने लोगों को स्टियर कर रहे Lift up your हैं। voices. अपने आवाज को उठाए। As we sing this chorus, let's not be quiet. और जैसे Let's हमने- lift up your voices and sing this chorus loudly and to Him. और जैसे हम ये गीत को गा रहे हैं, हम प्रभु के लिए गीत को गाएंगे। यीशुआ हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। He is our God. और वो हमारे परमेश्वर है, Oh, there is no one as greater as Him. और उनके जैसा महान कोई नहीं There is है, no one as marvelous as Him. और उनके जैसा अद्भुत विशाल There is कोई no नहीं one as है, wondrous as Him. और उनके जैसे अद्भुत कोई नहीं There is है, no one as beautiful as Him. और उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। He is your and my God. वो हमारे आपके और मेरे परमेश्वर He is है, the God of our family. और वो हमारे परिवारों के परमेश्वर He is है, the God who reigns in our life. और वो ही है जो हमारे जिंदगियों पर राज करते He हैं, is the God who created the heavens and the earth. और वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की He is the रचना God की, who has formed you and me. और जिसने आपको मुझे रचा है। And He says that He knows us before we were formed. और वो कहते हैं कि तुम गर्भ में धारण करने से पहले ही मैं तुम्हें जानता That हूँ, Almighty God, He knows us. और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमें जानते The हैं, one who is seated on the throne, और जो सिंहासन पर विराजमान है, who watches over you. और वो आपकी और मेरे पर He देखते looks हैं, at you. वो आपकी ओर देखते हैं, He protects you. वो आपका सुरक्षा प्रदान He करते saves हैं, you. वो आपको सुरक्षा प्रदान करते Oh, हैं, He deserves all the glory. He deserves all the honor. और सारी महिमा सारे आदर के योग्य वो है, He is the King of kings. He is the Lord of lords. और वो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु है। Oh, yes, Jesus, you deserve all the glory, all the honor, all the worship, O Lord. परमेश्वर आप भी इसके योग्य है प्रभु, सारी महिमा सारा आदर आपका ही है All प्रभु, our adoration is for you, Lord. सारा हमारा सराहना सिर्फ आप ही के लिए है This प्रभु। morning, Lord, we know that you are stirring us up, O Lord. प्रभु इस सवेरे के वक्त हम जानते हैं आप हमें स्टियर कर रहे हैं There is प्रभु। something which is happening in our midst, and God, you are in control, O Lord Jesus. प्रभु हमारे बीच में जो हो रहा है प्रभु आप उसमें मौजूद है, आपको धन्यवाद देते हैं। Oh, yes, Lord, I can see the light coming on. और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार प्रकाश आ रहा है, Oh, yes, Jesus, every darkness will flee away in the name of Jesus. और सारा अंधकार जो है वो निकल जाएगा यीशु के नाम से। Oh, as you look up to Him, और जैसे आप उनकी ओर देखते हैं, every fear in your life और सारा डर सारा भय आपके जिंदगी में, will be removed, और वो निकाला जाएगा, and your heart would be filled with confidence, with boldness in the name of Jesus. और आपका हृदय जो है परमेश्वर के धाड़स से भरा जाएगा यीशु के नाम से। Oh, if you are somebody who's keen to seek Him, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को खोजते हैं, get ready. आप तैयार हो जाइए, Get ready to seek Him this morning. और इस सवेरे के वक्त उन्हें खोजने के लिए आप तैयार हो Oh, when जाइए। you seek Him, you will find Him. और जब आप उन्हें सच में
खोजेंगे आप उन्हें जो And है when you पा will find लेंगे, him, you will know him. और जब आप उन्हें पा लेंगे तो आप उनको आप जो And है when you will know him, you will see the transformation in your life. और आप उनको जान लेंगे, और जब जान लोगे तो आप परिवर्तन अपनी जिंदगी में देखोगे। Oh God, we thank you, Jesus. परमेश्वर आपको धन्यवाद देते Thank you, हैं। Lord, for what you have done, O Lord. प्रभु जो आपने किया है आपको धन्यवाद। This morning we worship you. इस सवेरे के वक्त हम आपकी This आराधना morning करते we हैं, adore you. हम आपको सराहते हैं, We declare your greatness, O Lord Jesus. आपकी महानता को परमेश्वर हम घोषणा करते And we हैं, say that there is no one like you. और हम कहते हैं आपके समान कोई नहीं प्रभु। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा महिमा आदर हम आपको देते In हैं। Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord। God is good. परमेश्वर भले And हैं, His presence is there in our midst. और उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। And this morning I'm telling you, wherever you are, God will stir you up. और इस सवेरे के वक्त जहाँ कहीं भी आप है, परमेश्वर आपको स्टीयर करते हैं। You would not remain the same, but transformation will Amen. begin in your life in the name of Jesus. Amen। और जैसे आप है वैसे आप नहीं रहोगे, लेकिन परिवर्तन आपका भाग है और आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन लाएगा। This morning I want to encourage someone from Isaiah chapter 58 verse 8. और इस सवेरे के वक्त मैं किसी को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, यशायाह का किताब 58 अध्याय 8वां वाक्य। And as we were about to worship, this is the verse which God wants to encourage. और जैसे हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ये वचन के साथ किसी को प्रोत्साहित करना चाहता The word of है। God says, then your light will break forth like the dawn, and your healing will spring up quickly, and your vindication will go before you, and the glory of the Lord will guard your back. तब तेरा प्रकाश पो पटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। Hallelujah. This morning you do not need to worry about everything, all the things which are happening in और your देखिए life. इस सवेरे के वक्त आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जो स्थितियों से आप जा रहे हैं। And the word of God says that a light will go before you. और देखिए वचन कहता है उनका प्रकाश आपके सामने जाएगा। The healing will spring up quickly. That's what the word of God says, and He is promising you that healing is going to come quickly in your life. और देखिए वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर ये वादे के साथ कहता है कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। This morning, if you are suffering from some sickness, और इस सवेरे के वक्त अगर कोई भी बीमारी के साथ आप संघर्ष कर रहे this हैं, morning get ready because healing is springing up in your life. और इस सवेरे के वक्त आप तैयार हो जाइए क्योंकि चंगाई आपका भाग है। And if you are somebody who's seeking for that healing, shout an amen for that. और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चंगाई के लिए प्रभु की ओर देख रहे हैं, आप जो है आपके चंगाई को लीजिए, आमेन आप बोलिएगा। The word of God says that the glory of the Lord will guard your back. और देखिए यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर का तेज तेरा पीछे रक्षा करते चलेगा। Hallelujah. You would not be surrounded by the protection of any man, but you would be surrounded by the protection of God और Himself. देखिए आप किसी मनुष्य की सुरक्षा के आड़ में नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। And then verse 11 says, and the Lord will guide you continually. और देखिए 11वां वाक्य कहता है यहोवा तुझे लगातार तेरे लिए चलेगा। Hallelujah. It's not for one day, it's not for 2 days, but the word of God says that He will guide you continually in the name of और Jesus. देखिए वचन कहता है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार जो है वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे। And then the word says, He will satisfy your soul in parched places, and they will strengthen your bones, and you will be like a watered garden, like a spring of water whose waters never fail. आमेन आमेन। और वचन आगे कहता है और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। This morning, be encouraged that God is going to satisfy your soul. इस सवेरे के वक्त आप जो है प्रोत्साहित हो जाइए क्योंकि परमेश्वर आपके प्राणों को तृप्ति देंगे। And no matter if you're feeling that you are in a barren land, और आपको ऐसे लगता होगा कि आप बंजर भूमि में मानो बस गए हैं। you would be feeling that nothing is happening in your life. और आपको लगता होगा कुछ मेरी जिंदगी में हो नहीं रहा You है, cannot see anything springing up in your life. और कुछ भी आपके जिंदगी में मानो हो नहीं रहा But the है। word of God says
that He will satisfy your soul. लेकिन वचन कहता है कि वो आपके प्राणों को जो है तृप्ति देंगे, तृप्ति And He देंगे। says, you will be like the watered garden, like a spring of water whose waters will never fail. और देखिए बाबा कहता है तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। Hallelujah. Your waters will never fail in the name of Jesus. आमेन। आपके सोते कभी सूखेंगे नहीं यीशु के नाम से। In your life, God will spring out, new things in the name of Jesus. और आपकी जिंदगी में नए बातों का उत्पन्न परमेश्वर करेंगे यीशु के नाम से। Hallelujah. So be encouraged this morning. और इसलिए आप प्रोत्साहित हो जाइए इस सवेरे के वक्त Lift up your souls और अपने प्राणों को आप उठाइए and declare the mightiness of God. और परमेश्वर की बड़ाई को आप कीजिए। Hallelujah. And Hallelujah. coming back to the theme for this month, और इस महीने के शीर्षक की ओर वापस लौटते हुए God has blessed us with a very important and a challenging theme. और इस महीने परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही चुनाव भरा एक जो है शीर्षक हमें दिया है Pursue righteousness. और जो है धार्मिकता का पीछा करना। It's a calling which God has called us for, that we need to pursue righteousness. और देखिए एक बुलाहट के साथ परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हमें कैसे धार्मिकता का पीछा करना है। When I say pursue righteousness, righteousness is Jesus Himself, so we need to pursue Jesus और Christ. देखिए जब मैं धार्मिकता के बारे में बोलता हूँ तो धार्मिकता जो है वो स्वयं यीशु मसीह है। इसका मतलब है हमें यीशु का पीछा करना है। If you and me need to be righteous in the sight of God, we need to pursue Jesus Christ. We need to pursue His righteousness. और देखिए अगर आपको मुझे परमेश्वर के सामने सही होना है तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा करना है, उनके पीछे हो लेना है। Let's open a Bible to Isaiah chapter 51 verse 1. और हम जो है यशायाह का किताब 51 का 1 देखेंगे। The word of God says, listen to me, you who pursue righteousness and who seek the Lord. Look to the rock from which you were cut and to the quarry from which you were hewn. हे धार्मिकता पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। Let's close our eyes this morning before we go ahead. आइए अपने आंखों को मूंदते हुए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, God. We bless your name. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते Thank you, हैं। Lord, for encouraging us, O Lord. धन्यवाद आपने हमें प्रोत्साहित किया। Lord, this morning as we hear from you, Lord, we pray that, Lord, you speak to us and speak through us in the name of इस Jesus. सवेरे के वक्त जैसे हम आपके पास आए हैं प्रभु, हमसे बातें कीजिए, हमारे द्वारा बातें कीजिए प्रभु। Lord, we pray that let the words which comes out of our mouth, let it be inspired by you. प्रभु जो भी वचन मुख से हमारे आएंगे प्रभु आपसे प्रेरणादायक हो प्रभु। We give you all the glory and honor. सारा सराहना हम आपको देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Amen. When we read this word says, listen to me, you who pursue और righteousness. देखिए जब हम ये वचन को देखते हैं वहां पर लिखा है कान लगाकर मेरी सुनो, हे धार्मिकता पर चलने वालों। Hallelujah. This morning the word is going to speak to somebody who is going to seek righteousness. और देखिए इस सवेरे के वक्त वचन उस व्यक्ति से बात करेगा जो धार्मिकता का पीछा करता है। So open your ears. Tell the Lord, open my spiritual ears this morning, और इसलिए आप परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे आत्मिक कानों को आप खोलिएगा so that I परमेश्वर, can listen to you. ताकि मैं आपकी सुन पाऊं प्रभु। And last week we saw the benefits which we will reap when we will pursue righteousness. और देखिए पिछले सप्ताह हमने देखा कि कैसे हम जो है बेनिफिट्स पाएंगे जब हम धार्मिकता का पीछा करते हैं। Pursue righteousness will lead us to prominent life. और देखिए धार्मिकता का जब पीछा करते हैं तो हम एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। It leads us to a protected life. और हमें जो है सुरक्षा प्रदान या सुरक्षित व्यक्ति हम And it बन leads जाते us हैं। to a privileged life. और एक सौभाग्य का लाभ जो है हमें मिलता है। This is your and my portion if you and me start pursuing righteousness. और ये आपका और मेरा भाग है अगर हम जो है उस धार्मिकता का पीछा करते हैं। Napoleon made a mistake when he said, और देखिए नेपोलियन नामक व्यक्ति जो है उसने एक गलती की जब उसने ये कहा that God
God is on the side of the strongest battalion. और उसने कहा कि परमेश्वर जो है उस सामर्थी जो बटालियन है उनके और है. This statement has been proven wrong many a times. और देखिए ये जो उसने कहा था ये बहुत बार गलत साबित हुआ. Abraham took 318 men and defeated 4 kings. और देखिए ये इब्राहिम जो था उसने 318 लोगों के साथ जो है 4 राजाओं के साथ युद्ध किया. Gideon with his 300 dedicated men defeated an army of thousands. और देखिए गिदियोन जो नामक व्यक्ति था उसने 300 व्यक्तियों के साथ एक बड़े से जो है सेना को हरा दिया. David, a shepherd lad, और देखिए दाऊद जो एक बस चरवाहा था who was untrained for war. और तब जो है जब वो जो है वो युद्ध के लिए ट्रेन भी नहीं था. He armed with only a sling killed a giant 9 feet tall. और देखिए उसके पास जो है सिर्फ गुफान था, एक छोटा सा पत्थर था और एक बड़े से दानव को उसने गिर पड़ाया. God is on the side who does right. और देखिए परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति की ओर होता है जो सही करता है. God will fight the battles of those who are righteous. और देखिए परमेश्वर उसकी ओर युद्ध लड़ता है जो धार्मिकता का पीछा करते Those who हैं do His will. और जो उनकी इच्छा पर चलता है. And this morning I want to encourage you to pursue righteousness because it is one of the greatest weapon we have. और देखिए इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ क्योंकि धार्मिकता जो है एक उत्तम हथियार है जो आपको इस्तेमाल करना है. God saw righteousness in Abraham. और देखिए परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता इब्राहिम में डाली. God saw righteousness in Gideon and in David. और परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता जो है इब्राहिम में, गिदियोन में और दाऊद में देखी. Hence, even though they did not had a great army as the enemies, और देखिए उनके पास जो है बड़ा सा सेना नहीं था. God provided them the victory. आमीन. परमेश्वर ने फिर भी उनको विजय बनाया, उनको जय प्रदान The word किया. of God says in Romans chapter 8 verse 31, और वचन कहता है रोमियो का किताब 8वां अध्याय 31 if वाक्य, God is for us, who can be against अगर us? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है. Hallelujah. If you and me pursue righteousness, और अगर आप और मैं धार्मिकता का पीछा करें, and God sees that righteousness in us, अगर परमेश्वर हमारे अंदर वो धार्मिकता को पाते हैं, we देखते will be हैं, definitely be victorious and be overcomer in the name of और Jesus. निश्चय ही फिर हम जो है विजयी होंगे और जयवन से बढ़कर होंगे. Hallelujah. When we read Isaiah chapter 51 verse 1, और देखिए जब हम यशायाह का किताब 51:1 पढ़ते we हैं, see pursue righteousness and seeking God the Lord goes hand in और hand. देखिए तब हम देखते हैं कि कैसे धार्मिकता और सही करना जो है साथ ही साथ चलता है. The word of God says that listen to me, you who pursue righteousness and who seek the Lord. और देखिए वचन कहता है, हे धार्मिकता पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो. Hallelujah. This means that if you want to pursue righteousness, और इसका मतलब ये है अगर आपको धार्मिकता का पीछा करना it is है imperative that we seek the Lord. और ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को खोजें. Even in Matthew chapter 6 verse 33 we see the word of God says, but seek first the kingdom of God and his righteousness. और देखिए मत्ती का 6:33 में भी देखते हैं कि वचन कहता है कि कैसे हमें परमेश्वर के राज और उनकी धार्मिकता का पीछा करना या खोजना है. Seeking God and his righteousness is placed together, and we see और परमेश्वर का धार्मिकता और उनका मुख खोजना ये साथ साथ जाता है. if righteousness needs to be our portion, we need to seek him. और देखिए अगर धार्मिकता हमारा भाग होना है तो हमें उन्हें खोजना है. And when we start seeking him, his righteousness would come in us. और देखिए जब हम उन्हें खोजेंगे तो उनकी धार्मिकता हमारे अंदर दिखाई पड़ेगी. So it's very important for us to seek the Lord. और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को खोजें. Why does the righteousness and seeking the Lord goes hand in और hand? क्यों ऐसा है कि धार्मिकता और परमेश्वर को खोजना ये साथ साथ चलते हैं. If you see righteousness, how it can be defined. और देखिए अगर आप देखते हैं कि धार्मिकता को कैसे जो है उसका अर्थ बनता है, It says the condition of being acceptable to God as made possible by God. और देखिए इसका शब्दकोश में इस प्रकार लिखा है कि ये जो है परमेश्वर को
कंडीशन जो है कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, इस प्रकार से जो परमेश्वर ने रखा है या संभव किया है। Hallelujah. God's standards is defined by God himself. और देखिए परमेश्वर ने जो है अपना स्तर जो है या धार्मिकता का स्तर जो है उन्होंने खुद ने वो स्तर The को true बनाया है। righteousness is defined by standards of God. और देखिए ये सही मायने से जो धार्मिकता है वो परमेश्वर ने ही उसका स्तर बनाए रखा And है। his power is what enables us to gain that righteousness. और देखिए उनका सामर्थ जो है हमारी मदद करता है कि हम उस धार्मिकता को पा सके। And whatever effort we make, और जो कुछ भी हम जो है प्रयत्न डालें, it will not result in righteousness unless and until we seek God, unless and until we seek the face of God and receive that righteousness from him. और देखिए चाहे कितना भी प्रयत्न करे, प्रयास करे, लेकिन वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने वो स्तर को रखा है हम पा नहीं सकते या हम पहुंच नहीं सकते। He defined the righteousness. और देखिए उन्होंने जो है एक स्तर बनाया है धार्मिकता का। So it's very important for us that if we need to pursue righteousness, if we want to attain that righteousness, if we want to possess that righteousness, we need to seek the face of God. We need to seek God. और देखिए अगर हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर उनकी धार्मिकता का हम पीछा करें तो जरूरी है कि हम उन्हें खोजें, उनके पीछे होले और उनकी ओर निहारें। There is a common substitute of God's righteousness. और देखिए एक सामान्य रूप से जो है एक बोलते ना सब्स्टिट्यूट है परमेश्वर के धार्मिकता के लिए। It's called as self-righteousness. और इसको जो है स्व धार्मिकता कहते हैं। Self-righteousness is opposite of what God wants. और देखिए स्व धार्मिकता जो है परमेश्वर जो चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। There are many in this world who possess that self-righteousness. और देखिए बहुत सारे हैं दुनिया भर में जो खुद के या स्व धार्मिकता को खोजते हैं। They are not pursuing the righteousness of God, but they are pursuing their own self-righteousness. और देखिए वो परमेश्वर के धार्मिकता को नहीं खोजते लेकिन वो खुद की स्व धार्मिकता को खोजते हैं। What is this self-righteousness? और ये स्व धार्मिकता क्या है? Self-righteousness, what they do, they make a list of rules and checks them off. और देखिए स्व धार्मिकता का मतलब ये है कि वे स्वयं जो है कुछ रूल्स को बनाते हैं, कुछ कानून को बनाते हैं और खुद ही उसको जो है टिक मार्क करते हैं। They congratulate themselves by doing what they have listed and compare it with others. और देखिए वे फिर जो है अपने आप की तारीफ करते हैं, शाबाशी देते हैं अपने आप को दूसरों के तुलना में कि उन्होंने ये सारे चीजें चंद बातों को की है। And the Pharisees of Jesus' day were masters of self-righteousness. और देखिए फरीसी जो यीशु मसीह के समय काल के थे वो स्व धार्मिकता के उत्तम उदाहरण है। And what they did, they themselves defined the rules. और देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ने जो है एक जो है रूल्स बनाया And they checked them off. और उन्होंने जो है उन्होंने जो कानून बनाए थे उसी को अपने आप को तोलते But थे। Jesus had harsh words for them. लेकिन यीशु मसीह के पास उनके लिए एक कठोर जो है बातें थी। If you read Matthew chapter 23 verse 27 and 28. और अगर हम मत्ती का किताब 23वां अध्याय 27 और 28 पढ़ेंगे तो Jesus calls them as hypocrites. और परमेश्वर उनको कपटियों करके बुलाता है। Self-righteousness is nothing but a hypocrisy. और देखिए स्व धार्मिकता और कुछ नहीं लेकिन कपटीपना है। This morning you and me need to check our lives. और देखिए इस सवेरे के वक्त जरूरी है आप और मैं अपने जिंदगी को देखें। Are we somebody who is pursuing self-righteousness or are we somebody who is pursuing the righteousness of God? और देखिए हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं जो स्व अपना खुद का धार्मिकता को खोजते हैं या परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते हैं। When you are pursuing self-righteousness, what you do is you compare yourself with somebody else. और देखिए जब आप खुद के स्व धार्मिकता को देखते हैं या खोजते हैं तो आप अपना तुलना जो है किसी और व्यक्ति के साथ करते हैं। But when you pursue God's righteousness, लेकिन जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते you हैं compare your life with Jesus और Christ. तब आप जो है आपकी धार्मिकता यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं। The
standard which God has kept is Jesus Christ. और देखिए जो स्तर परमेश्वर ने रखा है वो यीशु मसीह है। And when you compare yourself with Jesus Christ, and when you amend your lifestyle on the basis of Jesus, of the lifestyle of Jesus Christ, then you will start pursuing the true righteousness of और God. देखिए आप जो है जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं और आप यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो आपकी जीवन शैली जो है अगर आप यीशु मसीह के समान करते हैं तभी सही मायने से आप परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते हैं। And to pursue righteousness means we must recognize that we cannot please God in our own sinful state. और देखिए हम परमेश्वर का धार्मिकता का खोजना मतलब ये है कि हम हमारे पाप में अवस्था में हम वो चीज को जो है पा नहीं सकते। There is a transformation which we need to happen in our lives. और देखिए जरूरी है एक परिवर्तन जो है हमारी जिंदगी में होते If we रहे। want to please God, we need to go away. We need to turn away from that sinful state. और जरूरी है अगर हम सच में परिवर्तित होना हम अगर धार्मिकता को पाना चाहते हैं तो ये पाप में अवस्था से हम परिवर्तित होना जरूरी है। And when we turn ourselves from the sinful state, we need to start seeking the face of God. और देखिए जब हम ये पाप में अवस्था से मुड़ जाते हैं जरूरी है कि हम परमेश्वर को खोजें। We need to start seeking the mercy of God. We और- need to start seeking the righteousness of God. परमेश्वर की दया परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर को खोजना जरूरी है। In the Old Testament, men were declared righteous when they believed God. और देखिए पुराने नियम में अगर हम देखें तो जो परमेश्वर पर भरोसा करते थे उनको धार्मिकता का जो है छाप मिलता था। Galatians chapter 3 verse 6 says, in the same way, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. और देखिए गलातियों का किताब 3 अध्याय 6वां वाक्य कहता है अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। Before Pentecost, people pursued righteousness by keeping God's law, seeking holiness and walking humbly, with humility. और देखिए पिंटकोस के पहले जो है तब तक जो है लोग अपने आप को जो है परमेश्वर का नियम परमेश्वर के कानून जो रखे थे उसका पीछा कर कर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर अपने आप को धार्मिकता का उसमें अपने आप को लगाते थे। No one was justified as righteous by rule keeping, but by the faith that enabled them to obey God. और देखिए कोई किसी को भी जो है धार्मिकता का छाप नहीं मिला गया जब उन्होंने कानून का पालन किया लेकिन जब तक उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। You and me need to believe God. You and me need to believe Jesus Christ. We need to have that faith in Him to attain that righteousness. और देखिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखें यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि हम और आप जो है उस धार्मिकता को पा सके। And today we are justified by faith that leads us to Jesus Christ. और देखिए आज जो है हमें जस्टिफाई किया है विश्वास के साथ जो यीशु मसीह के द्वारा है और जो हमें उनकी ओर ले चलता है। Those who are in Christ continue seeking God and continue pleasing Him. और देखिए जो परमेश्वर का खोज करते हैं वे जो है उनको प्रसन्न करते हैं। Pursuing righteousness and seeking God is not a one-day activity. और देखिए परमेश्वर का पीछा करना परमेश्वर को खोजना जो है वो जो है एक दिन का बात नहीं है। It's a continuous and a daily act which we need to do. और देखिए ये लगातार रोजमर्रा हमने जो है परमेश्वर को खोजना है। It's like that you want to become a doctor. और ये इस प्रकार है कि आपको मानो डॉक्टर बनना है। You will not study only for one day and become a doctor. और देखिए आप एक दिन पढ़ाई कर डॉक्टर की पढ़ाई करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते। You have to study daily. आपको सदैव जो है रोज आपको पढ़ना है। For number of years you have to study till the time you achieve that certificate. और देखिए कई साल तक आपको जो है वो पढ़ाई करनी है फिर आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। And even after the completion of your degree, और आपका डिग्री के बाद भी doctor has to still practice. और वो डॉक्टर जो है उसको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। Why? Because
because the doctor needs to gain that perfection. और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो डॉक्टर है उसको जो है सिद्धता प्राप्ति करनी है। You know, he has to practice and study with the real life challenges, you know, he faces. और देखिए उसको जो है सही मायने से रोजमर्रा जो भी चुनौतियां आती है उसके लिए उसको तैयार होना है। You know, this morning I'm telling you that you and me have got access to the righteousness through Jesus और Christ. देखिए इस सवेरे के वक्त आपको कह दूं कि आपको और मुझे जो है एक प्रवेश द्वार के समान मिला गया है जो यीशु मसीह है, जिससे हम परमेश्वर की धार्मिकता को पा सकते हैं। But if we need to attain that righteousness of God in our lives, लेकिन अगर सही मायने से हम चाहते हैं परमेश्वर की धार्मिकता को पा सके, we need to daily seek Him and seek His और righteousness. जरूरी है हम उन्हें खोजें, उनकी धार्मिकता को खोजें। You know, there are many roadblocks and hindrances which comes in our life when we start seeking Him. और देखिए जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो बहुत सारे अड़चन हमारे बीच में आते You know, when हैं। we make up our mind that we will start pursuing righteousness, there would be many obstacles, there would be many challenges which would be coming in our lives. और देखिए बहुत सारे अड़चन, बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना होगा जब हम कहेंगे कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता को पीछा करना है। But by faith, when we stand firm on a decision that no matter what comes in my life, I am going to pursue righteousness, I am going to seek the face of God. You know, I'm telling you, the challenges, the roadblocks, the obstacles, you know, will just go away from your life. और देखिए आप विश्वास के द्वारा जब आप जो है निडर होकर ये जो है आप करते हैं कि नहीं मुझे जो है परमेश्वर की धार्मिकता का खोजना करना है, उसका पीछा करना है, तो ये सारे चुनौतियां, सारे डर, सारे अड़चन जो है निकल जाते हैं फिर। This morning I want to bring to you three things, और इस सवेरे के वक्त मैं आपके सामने तीन बातों को लेकर आता हूँ, you know, which can become an obstacle in seeking and pursuing God's और righteousness. जो तीन बातें मैं आपके सामने लाता हूँ ये बस हो सकता है कि ये बातें जो है आपके आड़े आता है कि परमेश्वर का धार्मिकता आप खोज नहीं पाए। You know, one of the obstacle in seeking God and His righteousness is our position. और देखिए पहला तो जो हमारा अड़चन जो परमेश्वर और हमारे बीच में आता है वो है हमारी स्थिति या जिस स्थान पर हम खड़े हैं। You know, where and how we have positioned ourselves determines whether we are seeking God and His righteousness or we are seeking something else. और देखिए कहाँ पर हम खड़े हैं या किस जगह पर अपने आप को हमने रखा है, ये जो है निर्धारित करता है कि क्या हम परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते हैं या कुछ और खोजते हैं। And 2 Corinthians chapter 5 verse 21. और दूसरा कोरिन्थियों का किताब 5वां अध्याय 21वां वाक्य, The word of God says, "For our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। The word of God says that when we position ourselves in Him, और देखिए वचन कहता है जब हम यीशु मसीह में अपने आप को स्थानित करते हैं and then we can attain the righteousness of God. और तब जाकर जो है परमेश्वर की धार्मिकता हम पा लेते हैं। But if we do not position ourselves in Him, और लेकिन अगर हम जो है परमेश्वर यीशु मसीह में अपने आप को स्थानीय नहीं करते या वहां पर नहीं जोड़ते, then it is difficult for us to pursue God and seek Him. और फिर जो है बहुत कठिन हो जाता है कि हम परमेश्वर को खोजें या उनकी धार्मिकता को पाए। This morning you and me need to check our position. और देखिए इस सवेरे के वक्त जरूरी है हम अपने स्थान को जांचें। Have we positioned ourselves in Christ, क्या हमने अपने आप को मसीह में रखा है or have we positioned ourselves somewhere else? या फिर हम जो है कहीं और ही है। The word of God says that if you are in Him, और देखिए वचन कहता है अगर आप उनमें हैं you will attain the righteousness of God. तब जाकर आप परमेश्वर की धार्मिकता को You will पाएंगे, become the righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता बनेंगे। But if you are not in Him, लेकिन अगर आप नहीं है उनमें you will not be the righteousness of God. और फिर आप जो है उस धार्मिकता को पाएंगे नहीं। So it's very important that we position ourselves in Christ. और देखिए इसलिए बहुत ही महत्व है कि हम अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह में जो है स्थापित करें या उनमें हम बने रहे। You know, Jesus had came to Mary and Martha's house. और देखिए यीशु जो है एक बार जो है मेरी और मार्था के घर पे You know, आए। we have read this incident many a times. We know this incident, you know,
in a mind, in a heart. और देखिए ये जो घटना है हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। Luke chapter 10 verse 38 to 42. और लूका का किताब 10वां अध्याय 38 से 42। We'll see when Jesus came in Martha's and Mary's house. और देखिए हम देखते हैं कि कैसे जब यीशु मरियम और मार्था के घर पे आए, Mary positioned herself at the feet of Jesus. और देखिए मरियम जो थी वो यीशु मसीह के चरणों तले आए, But Martha positioned herself in kitchen or some other place. और ये मार्था जो थी वो जो है किचन में गई, वो वहां पर बाकी चीजों में, अन्य चीजों में व्यस्त हो गई। Where her focus was on work rather than Jesus. और देखिए जहां पर मार्था का जो ध्यान था वो काम पर था। Many a times it happens in our life as well. और देखिए हमारे जिंदगी में भी इसी प्रकार होता We है। position ourselves in such a way that seeking God doesn't become a priority. और देखिए हम परमेश्वर को खोजना हमारा प्राथमिकता नहीं होता है। What did Mary did? Mary positioned herself at the feet of Jesus. और देखिए मरियम ने क्या किया, उसने जो है यीशु मसीह के चरणों तले वो बैठ गई। When she positioned herself at the feet of Jesus, her focus was only to seek Jesus. और देखिए जब उन्होंने जो है मरियम ने जो है पर यीशु मसीह के पैरों तले बैठी तो उसका ध्यान जो है सिर्फ यीशु मसीह की ओर था। And this morning we need to understand और देखिए इस सवेरे के वक्त आपको मुझे जानना जरूरी where है। we have positioned ourselves, there our focus would be. और देखिए जहां पर अपने आप को हम रखते हैं वही हमारा ध्यान होगा। If we position ourselves in the world, our focus would be on the worldly things. और देखिए अगर हम अपने आप को दुनियादारी में रखते हैं तो हमारा ध्यान भी उस दुनिया की बातों में But रहेगा। if we position ourselves in Christ, our focus would be on Christ, on His righteousness. लेकिन अगर हम यीशु मसीह में उनमें अपने आप को स्थापित करते हैं तो हमारा ध्यान जो है उन पर रहेगा, उनकी धार्मिकता पर रहेगा। Martha had positioned herself in serving Jesus and His disciples. और देखिए मार्था जो है वो पर यीशु मसीह की सेवकाई करने में, उनके लिए खाना बनाने में लग गई थी। Is serving others wrong? क्या दूसरों का सेवा करना गलत बात है? No, it's not wrong. It's one of the best things which you do. नहीं, वो गलत नहीं है, ये बहुत ही उत्तम बात है कि आप दूसरों की As सेवा Christians, करें। we are called to serve others. और एक क्रिस्ती होने के नाते हमें बुलाया गया है कि दूसरों की सेवा करें। But this morning, the question to you and me is: लेकिन प्रश्न इस सवेरे के वक्त आपको मेरे लिए है, are we serving and then seeking, or are we seeking and serving? क्या हम पहले जो है सेवा करते हैं और फिर परमेश्वर को खोजते हैं, या फिर पहले परमेश्वर को खोजते हैं और फिर हम सेवा करते हैं? First we need to seek God and then serve. और देखिए पहले जरूरी है हम परमेश्वर को खोजें और फिर हम जो है सेवा करें। Many Christians are so much involved in serving others that they forget to seek God. और देखिए बहुत सारे हम क्रिस्ती जो है इतना हम दूसरों की सेवा में लग जाते हैं कि हम परमेश्वर को खोजना ही भूल जाते हैं। If you want to experience the face of God, और आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के मुख को अनुभव करें, उनको खोजें, and if you want to experience His righteousness in our lives, और उनकी धार्मिकता को आप अनुभव करना चाहते हैं, we need to position ourselves in His presence. जरूरी है कि हम अपने आप को उनकी उपस्थिति में पोजीशन करें। If we are not in His presence, we would not be able to experience His righteousness. और देखिए अगर हम जो है उनके अंदर उनकी उपस्थिति में अपने आप को नहीं रखते हैं तो उनको खोजना हो नहीं पाएगा। If you want to seek His righteousness, we need to spend time in His presence. और देखिए अगर उनको हमें खोजना है, उनकी उपस्थिति को खोजना है तो जरूरी है हम उनके साथ समय को बिताएं। Elijah had to go out and stand at the mountain. और देखिए एलिया को जरूरी था कि वो पर्वत पर चढ़े और वहां पर खड़े रहे। When he stood at the mountain in the presence of God, the Lord spoke to him and he heard from God. और देखिए जब वो पर्वत की चोटी पर खड़ा और परमेश्वर की ओर समय को बिताया तब परमेश्वर ने उससे बातें की। This morning you want to experience God, you want to hear from God, you want to seek God, you want to seek His righteousness, come and stand in His presence. और देखिए इस सवेरे के वक्त आप चाहते हैं आप परमेश्वर का अनुभव करें, उनसे आप बातें करें या उनकी आवाज को आप सुने, तो आप आइए उनकी उपस्थिति में और समय को आप बिताइए उनके साथ। Assess yourself, where are you positioned? आप अपने आप को जांच कर देखें कि आप कौन से स्थान पर खड़े हैं। Are you positioned yourself in the right position which is in Christ, or have you positioned yourself
in a wrong position. और देखिए क्या आपने सही मायने से यीशु मसीह में अपने आप को स्थानित किया है, या वहां पर उस स्थिति में आप खड़े हैं, या फिर आप गलत जगह पर स्थान में खड़े This हो। morning I'm telling you that you and me have been called to seek and serve. और देखिए इस सवेरे के वक्त आपको कह दूं कि आपको मुझे बुलाया गया है कि हम उन्हें खोजें और फिर उनकी सेवा और उनके लोगों की So सेवा it's करें। highly imperative that we position ourselves in Christ. और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को खोजें, यीशु We- मसीह में हम We पाए जाएं। position ourselves in the presence of God so that we would be able to attain His और righteousness. यीशु मसीह में हम अपने आप को स्थानीय करें और सही वो स्थान को पाले, ताकि हम यीशु मसीह को खोजें, उनकी धार्मिकता को पा सके। So one of the reasons why we do not attain that righteousness, or it becomes a challenge for us to pursue righteousness, is our position. और देखिए पहली बात तो जो है एक कारण तो है जिसकी वजह से हम परमेश्वर की धार्मिकता को पाने से चूक जाते हैं, क्योंकि हमारे स्थान या हम जो है सही जगह पर अपने आप को नहीं पोजीशन करते। Another reason why we are not able to attain the righteousness of और God दूसरा कारण जिसकी वजह से हम परमेश्वर की धार्मिकता को पाने से चूक जाते हैं, is because we seek Him with a wrong perspective. क्योंकि हमारा जो है गलत दृष्टिकोण की वजह से हम चूकते हैं। You know, God said in Jeremiah chapter 29 verse 13, और देखिए यिर्मयाह का किताब 29:13 में कहता है, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." और देखिए यिर्मयाह का किताब 29वां अध्याय 13वां वाक्य इस प्रकार कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। You know, this promise was made many years ago, but it still the promise still stand today. और देखिए काफी सालों पहले जो है ये प्रभु ने वादा किया था, लेकिन आज भी ये सच्चा है और आज भी सक्रिय The word है। says that when you will seek God with all your heart, you will find Him. और देखिए वचन कहता है जब तुम जो है परमेश्वर को संपूर्ण मन से ढूंढोगे तो आप पालोगे। Hallelujah. You want to pursue righteousness, you want to seek that, you want to attain that righteousness of God, you need to seek Him. और देखिए आप चाहते हैं परमेश्वर की धार्मिकता को पाले, आप जो है परमेश्वर को खोज करें, तो जरूरी है कि आप उन्हें The ढूंढें। word of God says that with all your heart you need to seek Him. और देखिए वचन कहता है पूर्ण हृदय के साथ हमें उन्हें ढूंढना है। The question is, what is there in your heart? और जरूरी है ये प्रश्न ये है कि आपके हृदय में क्या है। Our heart is filled with needs and wants. और देखिए हमारा हृदय भरा हुआ है जरूरतों से और बहुत सारे चीज इच्छाओं से। You know, many people seek God just to fulfill their needs and their wants. और देखिए बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजते हैं क्योंकि उनकी जरूरत है, उनकी कई इच्छाएं हैं। But seeking God means to know the heart of God and to know His will. और देखिए परमेश्वर का खोजना मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा ढूंढना। You know, especially seeking God becomes a challenge when we are going through struggles, when there is problems, when there is pressure in our और lives. देखिए परमेश्वर को खोजना, उनकी इच्छा को खोजना तब बहुत कठिन हो जाता है जब हमारी जिंदगियों में परिस्थितियां विपरीत होती है, हम संघर्षों से जूझते You know, हैं। when we are going through such kind of circumstances, such kind of situations, our focus is on the solution of our problems rather than the will of God. और देखिए जब हम ऐसे संघर्षों के बीच में होते हैं तब हमारा जो ध्यान है वो हमारे उपाय पर होता है, या उसका क्या उपाय होगा उस पर होता है, ना कि परमेश्वर पर कि उनकी इच्छा क्या है। But when we look at the life of David, लेकिन जब हम दाऊद की जिंदगी को देखते you know, हैं, God testifies about him that he is after my own और heart. देखिए दाऊद के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है मेरे हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति When है। David went through pressures in his life, और देखिए जब दाऊद की जिंदगियों में कठिन समय आ गए, he sought God with a perspective to understand and know the will of और God. देखिए जब उसके ऊपर कठिन परिस्थितियां आए तब उसने ये ढूंढा कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। He did not went and sought God with his own will, but he sought God to understand what God wants to do. और देखिए अपने इच्छा पूर्वक जो है वो अपनी करने नहीं गया, लेकिन वो ये देखने गया कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है, क्या ये परिस्थिति में He मैं was a करूं। man who knew what it meant to live under pressure. और देखिए ये ऐसा व्यक्ति था जिसको पता था कि जब कठिन समय होते हैं, विपरीत समयों में कैसे अपने आप को
जीना है या कैसे जीना You know, है। as a king of Israel, he knew the pressure of leadership. और देखिए एक इज़राइल का राजा होने के नाते जो अगुवे का चुनौती है वो उसको पता था। The higher and responsible your leadership is, और position is, जितना जो है आपका अगुवापन का आपके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, the greater are the pressures. और उससे बढ़कर जो है आपके ऊपर प्रेशर होता है। You know, during his reign, his son Absalom, और देखिए उसके राज के समय, दाऊद के राज के समय उसका बेटा अब्सलोम, you know, led rebellion against him. और ये अब्सलोम जो है अपने पिता के विरोध में बलवा करता And है। because of that, David and his loyal followers has to flee for their lives. और देखिए उस कारण जो है दाऊद और उसके जो ईमानदार जो लोग थे जो सेना में थे वे उसके पीछा करते हैं। You know, in that barren land, when they were fleeing for their lives, और देखिए जब वो जो है एक रेगिस्तान बंजर जमीन पर गए, feeling disgraced and rejected, और जहां पर उनको जो है नकारा गया या तिरस्कारित किया ऐसा माना गया, they were facing a situation, he was facing a situation where his future was uncertain. और देखिए दाऊद जो है इस परिस्थिति से जूझ रहा था कि जहां पर उसका भविष्य कोई मतलब वहां पर सर्टेनिटी नहीं थी। And during that time, he writes, he pens down a psalm, Psalm 63. और देखिए उस समय में उस घटना में वो जो है भजन संहिता 63 जो है लिखता है। And if you read the first verse, it says, God, I am earnestly seeking you. और देखिए अगर आप भजन संहिता 63 पढ़ेंगे, पहला वाक्य कहता है परमेश्वर मैं पूरे हृदय के साथ तुझे ढूंढता हूँ, And खोजता Psalm हूँ। 63 shows the perspective of this man of God under pressure. और देखिए भजन संहिता 63 जो है ये बात का उल्लेख करता है कि कैसे जब विपरीत परिस्थिति होता है तो कैसे इंसान प्रभु को And खोजता if है। you and I were there at that situation, और देखिए अगर आप और मैं जो है ऐसे परिस्थितियों में होते under that kind of pressure, और इस तरह का जो है प्रेशर, I doubt we would have written any song. और मैं शंका करता हूँ कि हम कोई गीत को लिखते, Even if we would have written the song, और अगर हम गीत को कोई लिखते भी, you know, we would have probably certain that lot of urgent requests are written in that. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम जो है उसमें काफी सारे परमेश्वर का जल्दी से जवाब का वो जो है उसमें लिखते हैं। You know, but when you read Psalm 63, लेकिन अगर आप जो है 63 भजन संहिता you know, it पढ़ते is हैं, interesting to know that it doesn't contains any petition. लेकिन वहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर बात ये है कि वहाँ पर कुछ भी जो है निवेदन वहाँ पे नहीं You पाया know, when जाता। David went and earnestly sought God, he was seeking from the perspective to know and understand the will of God. और देखिए जब दाऊद जो है परमेश्वर को खोज रहा था, जब वो यत्न कर रहा था तो ये प्रयास था कि परमेश्वर की स्व इच्छा जो है वो उसे मालूमात हो। You know, he expresses longing for God's presence, his praise, his joy and fellowship. और देखिए वो जो है इस फितरत में है कि वो परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर को खोजे, उनकी आनंद को खोजे। In the midst of pressure and troubles. और देखिए इस परिस्थितियों में जहां पर इतना सारा दुख दर्द है, You know, David's perspective of seeking God was that और दाऊद का जो है खोजना इस प्रकार था या उसकी धारणा इस प्रकार थी you know, that God is his delight. कि परमेश्वर जो है उसको हर्ष करने वाला God है, is his desire. और परमेश्वर उसकी अभिलाषा है, And God is his defense. परमेश्वर उसका अभिलाषा है, परमेश्वर उसका आनंद है, परमेश्वर ही उसका डिफेंस है। You know, what a beautiful perspective to carry when we seek God. और कितना सुंदर जो है एक धारणा या फिर विचारधारा रखना है परमेश्वर को खोजना। Let's not seek God with a perspective that God, I want this, I want this, I want this, I want this. और देखिए हम जो है ऐसे धारणा को रखकर ना दे कि ये चाहिए वो चाहिए, परमेश्वर ये बात को पूर्ति कर। But let's go and seek God and his righteousness with a desire to know him more, with a desire, you know, to understand his will. लेकिन हम जो है इस बात से, इस धारणा को रखकर हम जो है प्रभु को खोजे कि प्रभु तेरी इच्छा, तू हमें चाहिए, तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी If we हो। carry a wrong perspective while seeking God, और देखिए अगर गलत विचारधारा को हम रखते हैं जब परमेश्वर को खोजते हैं, we would not attain the true righteousness of फिर God. आप सही मायने से सही धार्मिकता को पा नहीं
सकते। If you want to attain that true righteousness of God, seek God to understand His will. और देखिए सही मायने से परमेश्वर की सही धार्मिकता को खोजना है, उनको खोजना है, तो उनकी इच्छा को खोजना जरूरी So the है। first challenge is your position. तो पहला चुनौती आप कौन सी स्थिति पर स्थान पर खड़े हैं। The second thing is your perspective, whether it is right perspective or is a wrong perspective. और दूसरा जो है आपका विचारधारा कि आपका दृष्टिकोण सही है या गलत है। And finally, the greatest obstacle which becomes a hurdle to see God and His और righteousness तीसरा सबसे बड़ा जो है एक बाधा जो परमेश्वर और उनकी धार्मिकता को खोज करने में आड़े आता है, is pride. और वो है घमंड। Psalms chapter 10 verse 4 says, और भजन संहिता 10वां अध्याय 4था वाक्य कहता है, in his pride the wicked man does not seek Him. In all his thoughts there is no room for God. दुष्ट अपने अहंकार में परमेश्वर को नहीं खोजता, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। A person who is proud, his thoughts are wrapped up in self-promotion and और self-exaltation. देखिए जो घमंड से भरा होता है उसकी फितरत होती है कि वो अपने आप को बढ़ाए, अपने आप के बारे में बोलता रहे, With little or no regard for God. और परमेश्वर के लिए थोड़ा या कुछ भी जो है परमेश्वर के लिए उसके अंदर भक्ति नहीं And the होती। best example to give is King Nebuchadnezzar. और सबसे उत्तम अगर हम उदाहरण दे तो राजा नबूकदनेस्सर। Daniel chapter 3 and 4, if we read, और अगर आप जो है दानियल का 3 4 अध्याय पढ़ते हैं, the King Nebuchadnezzar became proud of his achievements. और देखिए ये नबूकदनेस्सर राजा जो है अपने ही यश का जो है घमंड उसके अंदर And he अहंकार made a आया। big image of gold. और उसने जो है अपने लिए जो है एक बड़ी मूर्त को बनाया सोने का, And he wanted to self-exalt और वो himself. चाहता था कि वो अपने आप को जो है बड़ा बनाए। He passed out a decree और उसने जो है इस तरह से घोषणा that हो गया, everyone must fall down and worship the idol. और तो हर कोई जो है झुके और दंडवत करे उस मूर्त को, But those who do not do it, लेकिन जो उस मूर्त को आराधना नहीं करेगा, they दंडवत would be नहीं thrown in करेगा, the burning furnace. और उनको जो है अग्नि में जो है एक जलता हुआ अग्नि में डाला जाएगा। One of the things which a proud person does is self-exalting और himself. देखिए एक व्यक्ति जो घमंडी है उसका एक जो निशान है वो है अपने आप को ही वो बढ़ाता रहता है, Self-exaltation will lead you away from God. और वो अपने आप को ही बड़ा कराता है, और यही जो है परमेश्वर की ओर से दूर करते And you हैं। would start focusing on yourself and the achievements of your life. और फिर क्या होता है कि ये फलाना व्यक्ति जो है जो उसके अच्छे अच्छे बातें हैं उससे वो दूर हो जाता है। The glory which God deserves, you yourself take that glory. और देखिए जो परमेश्वर की महिमा है वो फिर ये फलाना व्यक्ति जो है अपने आप के लिए लेता The है। word of God says that pride goes before destruction. और देखिए वचन कहता है गिरने से पहले घमंड आता है। At the height of King Nebuchadnezzar's pride, और देखिए ये जो नबूकदनेस्सर राजा था उसका जो वो इतना घमंड से भर गया था, God took him down and turned him into a wild beast for 7 years. और देखिए उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए परमेश्वर ने 7 साल तक उसको एक पशु के समान बना And as दिया। Christians, as believers, we need to be diligent enough to guard ourselves with with this pride. और देखिए हम एक क्रिस्ती होने के नाते, प्रभु के बच्चे होने के नाते हमें अपने आप को संभालना है कि ये घमंड हमारे अंदर निवास न करे। If you feel that Christians are exempt from pride, you're wrong. और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम क्रिस्ती लोग जो है हमारे अंदर घमंड नहीं हो सकता तो आप गलत है। Christians can fall under pride. और देखिए क्रिस्ती जन जो है वे घमंड में गिर सकते हैं। King Uzziah, और राजा उज्जियाह was a young king who started by following the Lord. और देखिए ये जो है एक छोटे से समय से ही परमेश्वर की आराधना करने में लगा। When he was strong and successful, he succumbed under pride. और देखिए लेकिन ऐसा एक समय आ गया कि जब उसको यश मिला, वो एक अच्छे ओहदे पर पड़ा, तब वो घमंड के कारण गिर गया। And the Lord struck him with leprosy. और फिर परमेश्वर ने उसको जो है लेप्रेसी से उसको जो है ग्रसित किया। What are we today? और आज हम कौन है? Are we self-exalting ourselves? Are we walking in pride? क्या हम अपने आप को ही बढ़ाते हैं, हम घमंड में चलते हैं?
Are we boasting on our own achievements? क्या जो हम करते हैं उस पर ही हम ढींगे मारते हैं? You know, are we giving the glory to God? या फिर हम परमेश्वर को जो है परमेश्वर की महिमा करते हैं? You know, if we are having that pride in us, और देखिए अगर हमारे अंदर वो घमंड है, you know, we would not be able to seek God. We would not be able to attain that righteousness of और God. देखिए फिर हम परमेश्वर को खोज नहीं पाएंगे, उनकी धार्मिकता को हम पा नहीं You know, when you पाएंगे। look at the nature of the Pharisees, और देखिए जब आप फरीसियों के चरित्र को देखते they were हैं living high in their own pride, और देखिए वे अपने घमंड से भरे हुए थे and they were living high in their own और self-righteousness. वो अपने स्वधार्मिकता में ही अपने स्वधार्मिकता में ही थे। You know, Luke chapter 18 verse 11 says that Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like the tax collector. और देखिए यहाँ पर लूका का किताब 18वां अध्याय 9वां वाक्य कहता है और उसने वहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ये व्यक्ति के समान नहीं हूँ जो दान धर्म करता है उस प्रकार जो है वो उलाना करता है। What is this Pharisee doing? और ये फरीसी क्या करता है? He is comparing himself with somebody else. क्षमा कीजिएगा, ये फरीसी वहां पर खड़ा होकर कहता है कि मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूँ जो इस प्रकार करता है। You know, he is filled with that pride that I am not like that tax collector. और देखिए ये जो फरीसी है, ये जो चुंगी लेने वाले हैं, उसको अपना तुलना कर कर कहता है धन्यवाद कि मैं इस प्रकार नहीं हूँ। Hallelujah. But verse 14 says, लेकिन 14वां वाक्य कहता I है, tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. और देखिए यीशु फिर यहाँ पर 14वें वाक्य में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा और अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। If you are walking in pride, और देखिए अगर आप घमंड से चलते हैं, remember one thing, God will humble you. और देखिए आप ये ध्यान रखिए परमेश्वर आपको जो है दीन बनाएगा। Before God humbles you, get ready to be humbled yourself. इससे पहले कि परमेश्वर आपको दीनता में लेकर आए, आप अपने आप को दीन कीजिए। Because the eyes of these Pharisees were blinded by their own pride, they were not able to see the promise of God, that is the Messiah, Jesus Christ. और देखिए ये जो फरीसी थे, इनके आंखों में इतना घमंड था, उसकी पट्टी पड़ी थी, इसलिए वो यीशु मसीह के उद्धार को, वो मसीहा को नहीं देख पाए। Similarly, when we are filled with pride and self-righteousness, और देखिए उसी समान जब हमारे अंदर वो घमंड आता है, स्वधार्मिकता आता है, we would be blinded and would not be able to see God's और righteousness. देखिए फिर हम जो है परमेश्वर की धार्मिकता को देखने में असफल हो जाते हैं। The only way to overcome this obstacle of pride is walking in humility. और देखिए एक ही जो है उपाय, अगर आपको उनकी धार्मिकता को खोजना है तो आप दीनता पूर्वक उनके सामने चलिए। You and me need to humble ourselves. जरूरी है हम उनके सामने नम्र हो जाए। Proverbs chapter 27 verse 21 says, और नीति वचन का किताब 27वां अध्याय 21वां वाक्य कहता है, the crucible for silver and the furnace for gold, but people are tested by their praise. और जैसा चांदी के लिए कुटाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। Hallelujah. We are tested by the praises. और देखिए हम जो है हमारे प्रशंसा से हमारा उल्लेख होता है। When we need to test ourselves that whether we have overcome this obstacle of pride or not. और देखिए जब हम अपने आप को जांचें कि हम ये घमंड हमारे अंदर है या नहीं, when we give a praise test. और जब हम जो है एक praise test देते हैं, when somebody praises us for our achievements, for what we have done. और देखिए जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं जो हमने किया है, do we pass the glory to God in humility? क्या हम जो है दीन पूर्वक नम्र पूर्वक परमेश्वर को महिमा देते हैं? The one who rightly deserves it.
जो सही मायने से उसके योग्य है, or do we keep it on ourselves? या फिर हम अपने आप को सराहते हैं? You know, this morning the question to you and me is we need to check whether we are walking in pride or we are walking in humility. और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रश्न ये है कि क्या हम दीनता पूर्वक चल रहे हैं या घमंड से भरे हैं? You know, there are many who wants to seek God. There are many who go and seek the face of God. और देखिए बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता का खोजना But चाहते हैं। somewhere they face difficulty in seeking God, in hearing from God. लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है इस कठिनाई का सामना करते हैं, परमेश्वर से सुनने के लिए वो असफल हो जाते You हैं। know, this morning we need to check ourselves. We need to assess ourselves. Are we positioned ourselves in a wrong place? और इस सवेरे के समय में जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें और देखें क्या हमने अपने आप को गलत स्थान पर स्थापित किया है, Are we walking in pride? या फिर हम जो है घमंड में चल रहे हैं, You know, are we seeking God with a wrong perspective? या फिर हम गलत विचारधाराओं को लेकर, गलत दृष्टिकोण को लेकर परमेश्वर को खोज रहे If हैं। somewhere, if we are walking in these things, और अगर कहीं ना कहीं इन चंद बातों से हम हमारे अंदर है, we need to change our lifestyle. जरूरी है हमारे जीवन शैली को We हम need to बदल दें। change the way we are seeking God. We need to change the way we are pursuing righteousness. और जिस तरह से हम धार्मिकता का पीछा करते, खोजते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, उस जो है चाल को हमें बदलना And when होगा। we change ourselves, और जब हम अपने आप को बदलेंगे, when we seek God with a right perspective, और सही धारणा से, सही विचारधारा when से we हम seek God in humility, when we seek God positioning ourselves in Christ, then we will attain that righteousness of God. जब हम दीनता पूर्वक, नम्र पूर्वक, हम सही मायने से यीशु मसीह में अपने आप को स्थापित करेंगे, स्थान में लाएंगे, तब जाकर हम परमेश्वर के धार्मिकता को पा लेंगे। So this morning, if you are ready to pursue और इस righteousness, सवेरे के वक्त अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के धार्मिकता if को you are ready खोजने to के seek लिए, God, आप परमेश्वर को पाने के लिए, खोजने के लिए तैयार let's हैं। close our eyes this morning. आइए अपने आंखों को मूंद लेते हैं, हम Let's प्रार्थना look करते unto हैं, Him. हम परमेश्वर की ओर ध्यान देते Let's हैं। check the perspective with which we are seeking Him. और जो दृष्टिकोण, जो धारणा से हम प्रभु को खोजते हैं, हम जांचें। If we are seeking Him with a perspective of our wants and our needs, अगर हम जरूरतों के वजह से, इच्छाओं के वजह से, स्व इच्छा के वजह से हम प्रभु को ढूंढते हैं, you know, then we need to change our perspective. जरूरी है हम हमारे धारणाओं को, This morning, tell the Lord that, Lord, I am seeking you, Lord. हम धारणाओं को बदल दे और हम प्रभु से कहे, प्रभु इस सवेरे के वक्त में I am आपको seeking खोजता your हूँ। righteousness, O God, प्रभु आपकी धार्मिकता, आपकी इच्छा को with a खोजता हूँ। perspective to know your will, to understand your will, O Lord. प्रभु इस धारणा से कि मैं आपकी इच्छा, आपको जानना चाहता हूँ। God, I want to once again position myself in you, Lord. प्रभु फिर एक बार मैं अपने आप को आप में पोजीशन, सही मायने से स्थान में लाना चाहता This हूँ। morning, people of God, check your इस lives. सवेरे के वक्त परमेश्वर के लोगों को Are अपने you आप को in the जांचें। presence of God? क्या आप परमेश्वर के उपस्थिति में Have you हैं? positioned yourself in Christ? क्या आपने अपने आप को मसीह में रखा है? If somewhere, if you have not positioned yourself in Christ, अगर कहीं ना कहीं आपने सही मायने से प्रभु में अपने आप को नहीं रखा है, time has come for you to return back to the position. और समय आ गया है कि आप सही मायने से उस सही स्थान पर लौटे। Lift up your voices this morning. इस सवेरे के वक्त अपनी आवाज को उठाए Tell the Lord that, Lord, I want to be in the right position, seeking you, Lord. और परमेश्वर से प्रार्थना करे और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं आपको खोजता हूँ। If there is प्रभु any kind of pride in me, O Lord, प्रभु कोई भी प्रकार का घमंड अगर मुझ में है प्रभु, oh, remove that pride from my प्रभु life. उस घमंड को मुझ में से निकाल प्रभु। I don't want to walk in that sin of pride, O Lord, प्रभु उस पाप के घमंड के पाप में मैं नहीं बनना, but I बसना want to चाहता। walk in humility, O Lord प्रभु Jesus. नम्रता से मैं चलना I want चाहता to हूँ। humble myself this morning. मैं अपने आप को परमेश्वर दीनता With a humble heart, I want to seek you. प्रभु परमेश्वर मैं दीनता पूर्वक आपको खोजना With चाहता a हूँ। humble heart, I want to pursue your righteousness, O God. प्रभु नम्रता के हृदय से मैं आपके धार्मिकता को खोजना चाहता Can we lift हूँ। up our voices and we pray? आइए अपने आवाज को उठाए और प्रार्थना करें। Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Make
Let it be your prayer this morning. और ये हमारी प्रार्थना हो, Transform my heart so that I can be like you, Lord. प्रभु मेरे हृदय को बदल दे ताकि मैं आपके समान हो जाऊं प्रभु। I am the clay. Mold me and make me. This is what I praise. Change my heart, oh Lord. May I be like you. Yes, God, this is our prayer this morning, O Lord. पिता ये प्रार्थना है हमारी प्रभु, That we need to be like you, Lord. प्रभु कि हम आपके समान हो जाए प्रभु। This is not a one-day prayer, but this is an everyday prayer that, Lord, transform me in your image, O Lord. प्रभु हम ये एक दिन के लिए नहीं लेकिन प्रतिदिन हम चाहते हैं कि हम आपके स्वरूप में बदल जाए। Lord, we want to attain your true righteousness, O God. प्रभु सही धार्मिकता जो आपका है वो उसको हम पाना चाहते We हैं। want to seek you continually, O Lord, पिता Master. सदैव हम आपको खोजना चाहते हैं। Oh, this morning we pray. और इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, That God, you speak to your people, O Lord. परमेश्वर आप आपके लोगों से बातें कीजिए। Lord, as they seek you, और जैसे वे आपको खोजते हैं, God, let their perspective be changed, O Lord. प्रभु उनका विचार दृष्टिकोण जो बदल जाए। Lord, let their position be changed, O Master. प्रभु उनका दृष्टिकोण, उनका जो स्थान है वो बदल जाए। Oh, Father God, we pray that you take control of your people, O Lord. प्रभु आपके लोगों का ताबा आप लीजिए परमेश्वर। Help them so they do not fall in the sin of pride, O Lord. प्रभु होने दीजिएगा कि वो घमंड के पाप में ना पड़ने पाए प्रभु। But Lord, help us so that we can walk with a humble heart, O Lord, and with humility, O Lord प्रभु Jesus. हमारी सहायता करें कि हम दीनता नम्रता से हम चले प्रभु। Oh God, this morning we pray प्रभु इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, that, Lord, as your word said, that seek and you will find. और परमेश्वर आपका वचन कहता है ढूंढो तो पाओगे। Let your people find you in the name of Jesus, O आपके Lord. लोग आपको पाले यीशु के नाम Let your से। people find that true righteousness in you in the name of Jesus. आपके लोग आपकी सही मायने की धार्मिकता को पा सके प्रभु। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Amen. You know, when we seek God, और देखिए जब हम प्रभु को खोजते हैं, you know, with a true heart, when we seek God, we will attain that true righteousness of God in our lives in the name of Jesus. और सही हृदय से हम जब सही हृदय से प्रभु को खोजते हैं तो वो सही मान्य का परमेश्वर का धार्मिकता को हम पालेंगे। Now the time has come to worship our God in our giving. और अब समय आया है कि हम परमेश्वर को देने के द्वारा आराधना करें। If you are an elder of the house, I would request you to go and collect the offering in the offering bag. जो घर के वरिष्ठ है वो आप जो है भेंट को इकट्ठा करें। The ones who transfers the offering and the tithes in the church account, please continue to do so. और जो कलीसिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं आप ऐसा ही कीजिएगा। And if you're somebody who has recently joined and want to know the bank account details, please text us and we would be happy to provide it to you. और अगर आप ऐसे हैं हाल ही में हमसे जुड़े हैं, आप चाहते हैं कलीसिया के बैंक डिटेल्स के बारे में, आप हमें मैसेज कीजिए, हमें आनंद होगा आपको डिटेल्स The word of God says that honor God with your first fruits. और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के आदर पहले उपज से करें। You know, this morning I'm telling you, as you honor God, God will honor you. मैं कह दूं कि परमेश्वर को जैसे आप आदर करोगे परमेश्वर आपका आदर करेगा। And if you have collected the offering, I would request the elder of the house to hold the offering and the rest of the people can stretch forth their hands as we pray. और जैसे आपने भेंट को इकट्ठा किया है आइए अपने हाथों को बढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, God. We bless your name, O Lord. परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते We हैं। give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। Thank you, God, for the wonderful blessings which you have given to us, O धन्यवाद Lord. प्रभु उत्तम आशीषों को आपने हमें नवाजा है। Lord, as this offering and tithe has come into your store, O Lord, जैसे ये भेंट और दशमांश आपके घर में आया है, we pray, let it be multiplied, let it be fruitful in the name of ये Jesus. बहुगुणित हो और फलवंत हो जाए यीशु के नाम And से। we pray, let it be used for your kingdom growth in the name of आपके Jesus. राज के बढ़त के लिए उपयोग में लाया जाए यीशु के नाम से। As your people have generously given, O Lord और Master, जैसे आपके लोगों ने परमेश्वर दिया है,
है। We pray that Lord, you, O Lord Master, bless them, O Lord. You open the floodgates of heaven in their lives, O Lord Jesus. प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए, स्वर्ग के झरोकों को आप खोलिएगा Let them प्रभु। never lack anything in their lives, O Lord कोई Master. बात की घटी उन्हें न हो यीशु के नाम से। Father God, we bless your name, O प्रभु Lord. आपके नाम को हम सराहते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. And moving ahead to the announcements. और सूचनाओं की ओर बढ़ते हुए And the regular announcement would remain the same. और जो सामान्य रूप से हमारी सूचना है उसी Our प्रकार weekly है। activities, weekly programs will continue to be on Zoom. और हमारे सप्ताह के जो भी प्रोग्राम्स है वो जूम पर होगा। You know, Wednesday 7:30 we have a Bible study. और बुधवार को 7:30 बजे हमारा बाइबल अध्ययन। Saturdays at morning 11 o'clock we have the fasting and prayer. और शनिवार को 11 बजे हमारा उपवास प्रार्थना। 5:30 in the evening on Saturday we have a youth church. 5:30 बजे शनिवार को युवकों की सभा। You know, 8 o'clock in the evening again on Saturdays we have a Sunday school. और 8 बजे जो है संडे स्कूल होगा। And a teen church is on Friday at 5 o'clock. और 5 बजे 3 सभा होगी शुक्रवार के दिन। You know, I would request you to connect to your leaders and join these weekly programs. और हम आपसे विनती करते हैं आपके अगुओं के साथ आप संपर्क करें और ये जो सप्ताह के जो भी मीटिंग्स है आप उनमें सहभागी हो You know, जाएं। our Sunday service would be continued on Facebook and YouTube at 10 o'clock in the morning. और हमारी इतवार की सभा यूट्यूब और जो फेसबुक पर 10 बजे सवेरे आया जाएगा। Join us and be blessed. और आप हमसे जुड़िए और आशीषित हो जाइए। Finally, let's all close our eyes as we look unto God in the final prayer for today. आइए हम आगे की प्रार्थना करते हैं जब हम परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। Father, we thank you, God. We bless your name. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते You are हैं। wondrous. You are marvelous, O Lord. प्रभु सच में आप अद्भुत हैं, आप सराहनीय You are योग्य awesome. हैं। There is no one like you, Lord. आपके समान कोई नहीं प्रभु। This morning you have spoken to us, O Lord Jesus, और इस सवेरे के वक्त आपने हमसे बातें that की। as we pursue righteousness, it is imperative that we seek you, Lord. और जैसे परमेश्वर हम आपको आपकी धार्मिकता को पाना है तो हमें जरूरी है कि हम आपको खोजें। Father, we pray that let not we look at any other people, O Lord, but we look at you when we seek righteousness, O प्रभु God. होने दीजिए जब हम धार्मिकता का खोज करते हैं हम किसी और व्यक्ति की ओर ना देखें लेकिन हम आपकी ओर देखें प्रभु। Lord, I pray and I give your people in your hand, O पिता Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता As a हूँ। son and servant, O Lord Master. आपका बेटा आपका सेवक होने के Lord, नाते I प्रभु, bless them, O Lord Jesus. आपके नाम से आशीषित करता Lord, I हूँ। pray for every heavenly blessings to pour upon their lives. पिता सारे स्वर्गीय आशीष से उनकी जिंदगियों पर आने I दीजिए। pray that as the heavenly blessings come, I pray for every physical and the material blessing, O Lord पिता Jesus. जैसे आत्मिक पिता आशीष उनका भाग होता है बाकी अन्य आशीष भी उनका भाग होने If there is दीजिए। any kind of lack in their lives, और अगर कोई भी बात की घटी वो महसूस कर रहे हैं I pray that the lack would be satisfied in the name of Jesus. प्रभु वो घटी निकल जाएगी और वो तृप्त हो जाएंगे यीशु के नाम से। Lord, we pray और हम प्रार्थना करते हैं that, Lord, let your people be received at promotion in their lives, O और Lord. प्रभु आपके लोग प्रमोशंस को पाए Oh, परमेश्वर। higher place is their portion in the name of Jesus. उत्तम परमेश्वर जगह उनका है उनका भाग है यीशु के नाम से। God, we pray that let there be a channel of blessings for others, प्रभु O वो Lord. जो है आशीष का स्रोत बने यीशु के नाम से। As they walk in this week, O Lord और Master, जैसे ये सप्ताह में वो चलते हैं प्रभु Lord, we pray that every step which they take, और हर एक परमेश्वर पग वो रखते हैं प्रभु। Lord, you will guide them, you will protect them, O Lord प्रभु आप Jesus. उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए, आप उनके साथ बने रहे। As your word said that you will guide them continually, O और Lord. जैसा आपका वचन कहता है कि आप लगातार हमारे साथ चलते हैं। I pray let your guidance be their portion every day of their life in the name of प्रभु Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका गाइडेंस उनका भाग होने दे हर दिन यीशु के नाम से। Father God, we pray for the healing in their lives. प्रभु आपके चंगाई को आपके लोगों पर मांगते We हैं। pray for the healing in their families, O प्रभु Lord. उनके परिवारों में चंगाई को मांगते As your हैं। word said that healing will spring out. और जैसे आपने कहा कि चंगाई फूट पड़ेगी This परमेश्वर। morning we pray प्रभु हम प्रार्थना करते हैं that, Lord, healing spring out in their lives in the name पिता of उनकी Jesus. जिंदगियों में चंगाई उठ पड़ी हो यीशु के नाम से। With faith, let them believe it, O Lord Master. विश्वास के साथ वो पाने पाए And let प्रभु। them receive it in the name of वो Jesus. पाने पाए यीशु के नाम से। Father God, we thank you. We bless your name, O प्रभु Lord. हम आपको सराहते हैं, आपको ही धन्यवाद देते Let our हैं। lives would be a living testimony for you, Lord. पिता हमारी जिंदगी एक जीवित पिता गवाही के समान हो। We give you all the glory and honor, Lord सारा Jesus. सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. आमेन। Hallelujah. Let
let's share the grace. आइए अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा का सहभागिता be with us हमारे साथ बने रहे now and forevermore. अब और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow you भलाई और करुणा आपका अनुसार करेगी all the days of your life, आपके जीवन काल तक, and you shall dwell in the house of और God आप परमेश्वर के धाम में निवास करेंगे forever and ever. Amen. अनंत काल के लिए। आमेन। God bless you. Stay blessed. प्रभु आपको आशीषित करे, आप आशीषित बने रहे।